हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैथ सीरीज़ में। 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन इफ़ स्लोप इज़ -3/7 एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 5, -2। इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता होनी चाहिए। वो हमें पता है क्या होती है, y - y1 इज़ इक्वल्स टू mx - x1, where x1 and y1 are the points where line passes through it and m is the slope. So now putting all the values, y minus y1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -2, m की प्लेस पे -3/7 एंड x1 की प्लेस पे 5. That is y plus 2 is equals to -3/7 x minus 5. When you solve this equation, you will get 3x plus 7y is equals to 1. Just cross multiply it. 7y plus 14 is equals to -3x plus 15. After solving, you will get 3x plus 7y is equals to 1. Hope ये question clear हो गया होगा. Now comes to the next question. Slope of the line joining through the points is this. इस question में आपको slope given है और आपसे point में x पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज़ बेसिकली x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2. हेयर -5/8 इज़ m. नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, in place of m we will write -5/8, in place of y2 we will write -4, in place of y1 we write -1. Similarly in x2 we write x and in x1 we write -5. Now solve this equation. -5/8 is equals to -5 upon x plus 5. जो आपका न्यूमिनेटर है वो सेम है, दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अब हम डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देते हैं. एक साइड हमारा क्या है x plus 5, एक साइड हमारा क्या है 8. So x is equals to 3. 8 minus 5 is 3. Correct option is option number 2, that is 3. Now comes to the next question. The coordinates of the centroid of the triangle. Centroid of the triangle के आपको coordinates दे रखे हैं 3, -2. And what are the coordinates of C? C के coordinates पूछे हैं आपसे. If A and B are -2, 5 and 6, -2. पहले आपके पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3. Similarly for the y coordinate, y is equals to y1 plus y2 plus y3 by 3. Now we will put the values. In place of x1 we will write -2, this is x1, 5 is y1, x is x2, -2 is y2, and we have to find x3 and y3 in this question. And x and y are -3 and 2. This is basically x and this is y. Now start with the x. X is 3, x1 is -2 and x2 is 6. x3 is x3 by 3. Just cross multiply is y is equals to -2 plus 6, that is 4 plus x3. So x3 is equals to 9 minus 4, that is 5. So x3 is 5. Now we will check the options. There are two options, 2 and 3, where x is 5. That means we have to solve y also. Now for y we know formula of y is equals to y1 plus y2 plus y3 by 3. Again we solve with the same method as we solve in the case of x. So y is -2, y1 is 5, y2 is -2 plus y3 by 3. Again cross multiply. -6 is equals to 5 minus 2 is 3 plus y3. -6 minus 3, that is -9. So y3 is -9. That means correct option is option number 2. Now moves to the next question. Question is A and C are the two vertices of ABCD. We have ABCD square.
A and C are the vertices. This and this A and C we have given, and we have to find the equation of B and D. That means हमें इसके इक्वेशन निकालनी है. तो सबसे पहले तो ये कॉमन पॉइंट पता होना चाहिए जो दोनों में पास हो रहा है, और हमें पता है ये कैसे निकलता है, मिड पॉइंट से. मतलब फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ A and C. एंड फॉर मिड पॉइंट वी नो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 and y is equals to y1 plus y2 by 2. Let's calculate the midpoint. 7 plus 1 by 2, that is 8 by 2, that is 4. Similarly, we will solve for the y-axis. It's y1, y2, and here it is y. We put the values, we will get minus 8 plus 4 by 2, that is minus 4 by 2, that is minus 2. That means midpoint is 4 comma minus 2. Now we know that जो स्लोप A और C की होगी उसकी परपेंडिकुलर स्लोप किसकी होगी, B और D की. दैट मीन्स हम सेकेंड काम हमारा क्या है, स्लोप निकालना है. फर्स्ट काम क्या था हमारा, मिड पॉइंट निकालना. सेकेंड स्टेप इज़ वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप. नाउ फॉर स्लोप वी नो दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड वी हैव x1 y1 x2 y2. Let's solve the slope. y2 is 4 and y1 is minus 8. 4 minus of minus 8. Similarly, x2 is 1 and x1 is 7. So it comes out to be 12 by minus 6, that is minus 2. So slope of AC is minus 2. Now we have midpoint, that is 4 comma minus 2, and slope is minus 2. Now we know दो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप कैसे हम रिलेट करते हैं, उनकी स्लोप को हम कैसे रिलेट करते हैं. m1 m2 इज इक्वल्स टू -1. हमें फर्स्ट लाइन AC की स्लोप हमने निकाली, दैट इज़ -2. हम m2 की स्लोप निकाल सकते हैं, तो m2 की स्लोप हमारी क्या आ जाएगी, 1/2. मतलब अब हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है जिसकी हमें स्लोप भी गिवन है और जिसका हमें पॉइंट भी गिवन है. हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है जब स्लोप और पॉइंट्स गिवन होते हैं. दैट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. हमें स्लोप कितनी गिवन है, 1/2. पॉइंट्स हमारा क्या आया था, 4 कोमा -2. चलो बना लेते हैं. 4 कोमा -2 मतलब y की वैल्यू -2 आ गई. स्लोप हमारी क्या आ गई, 1/2 x माइनस 4. सॉल्व करोगे y प्लस 2 इज इक्वल्स टू हाफ x माइनस 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 4. इक्वेशन ले जाएंगे उधर, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, दैट मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8. देख लो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8. सो आपका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. तो इससे हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, जब भी हमें कोई भी चीज़ इक्वेशन लाइन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक तो पॉइंट्स चाहिए किसमें से वो पास होएगी, और एक क्या चाहिए, स्लोप चाहिए. अगर पैरेलल के लिए स्लोप है तो हम डायरेक्ट स्लोप यूज़ कर लेते हैं. अगर लाइन परपेंडिकुलर आ जाए उसके लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज़ फाइंड k इफ़ द लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन. हमें दो लाइंस दे रखे हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और हमें k निकालना है. तो सबसे सिंपल है, अभी हमने देखा है जब भी दो लाइंस दी हो हमें एक कंडीशन पता होती है, दैट मीन्स जो दोनों की स्लोप है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, -1. मतलब हमारा काम क्या है, दोनों लाइंस की स्लोप निकालने हैं, उसको -1 के इक्वल इक्वेट कर दें. चलो अब फर्स्ट काम स्लोप निकाल लेते हैं. 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 1 के. हमें पता है स्लोप के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और जो m होता है वही हमारी क्या होती है, स्लोप होती है. तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. दैट मीन्स y आप एक साइड पे ले जाओ, बाकी सारा कुछ एक साइड पे ले आओ. तो इससे आपकी जो m आ गई वो क्या आ गई, 4. मतलब m1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4.
नाउ वी कैलकुलेट m2। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 2। अगेन वही काम, इक्वेशन ऑफ लाइन कन्वर्ट करो, कॉफिशेंट 1 y का 1 होना चाहिए, दैट मीन्स हम k से तीनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये बन गई ना इक्वेशन स्लोप की फॉर्म में। और इससे हम क्या देख लेते हैं, 5/k क्या है हमारी स्लोप है, मतलब दूसरी स्लोप क्या आ गई, 5/k। क्लियर हो गया इतना। बस अब हमने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे 20/k क्या आ गया, -1, दैट मीन्स k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -20। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोल्स है ऑफ हाइट 12 मीटर एंड 17 मीटर। एक पोल है 12 मीटर पे, एक पोल है हमारा 17 मीटर पे, एंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर दोनों बने हुए हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट्स, मतलब इन दोनों के फिट्स पे जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 12। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये आपसे पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 12 है, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, दैट मीन्स इतना पार्ट भी क्या आ गया आपका, 12 आ गया। पूरा हमारा क्या था, 17 था, दैट मीन्स ये पार्ट कितना आ गया, 5। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वैसे लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो। हमें पता है 5 12 का ट्रिपलेट क्या होगा, 5 12 के साथ पेयर में कौन जाता है, 13, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 13। बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो फिर भी आप क्या निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो 169 है। 169 किसकी स्क्वायर है, 13 की। सो इसका करेक्ट आंसर उस हिसाब से भी क्या आ जाएगा, 13। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेडर ऑफ 10 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है, वॉल के अगेंस्ट एक लेडर पड़ी हुई है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 10 मीटर है। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। वो एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है ग्राउंड के साथ। हाउ फेयर द फुट ऑफ द लेडर, आपसे ये पूछा, लेडर के फुट में पूछा है। वैसे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, दैट मीन्स आपका साइंस बैकग्राउंड रहा ही होगा। जब साइंस बैकग्राउंड रहा होता है तो हमें पता होता है जो एंगल के साथ वाली लाइन होती है वो हमारी कॉस थीटा से आती है, और साइड वाली लाइन, सामने वाली लाइन क्या आती है, साइन थीटा से आती है। मतलब बेसिकली जो आपका ये फुट का निकालना है वो हम कैसे निकाल लेंगे, 10 cos 60 डिग्री। और हमें पता है cos 60 क्या होता है, 1/2। मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 5 मीटर। और अगर यही आपसे डिस्टेंस वॉल का पूछा होता, हाइट वॉल की पूछी होती, तो आप क्या लगा देते, 10 sin 60 लगा देते और आप सॉल्व कर लेते। बाकी जिसको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ वो आप दूसरे मेथड से भी देख सकते हो। देखो दूसरे मेथड में हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, और हमें क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन रिलेशन देता है, कॉस रिलेशन देता है। दैट मीन्स आपने क्या निकालना है, कॉस। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपने कैलकुलेट करना, उसको बेस रहने दो, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ गया आपके पास, 10। तो ये क्या बन गया, cos 60, मीन्स बेस की वैल्यू क्या आ गई, 10 cos 60। हमने वैसे भी अभी भी देखा था ये 10 cos 60 ही निकला था, और हमने इससे भी देख लिया 10 cos 60 ही निकला। ये छोटे छोटे रूल से आपका टाइम सेव हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। बट अगर फिर भी कन्फ्यूजन रहती है, पेपर में एक्यूरेसी मैटर करती है, टाइम ठीक है, टाइम नो डाउट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट क्वेश्चन एक्यूरेसी से कराओ तो ज़्यादा बेटर है। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट दिस। तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, वेयर a इज़ इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस, b इज़ इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस। हमें देख लो एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, 3/4, और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, 2/3। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x/3 प्लस 3y/2 इज इक्वल्स टू 1। टेक LCM, you will get 8x plus 9y is equals to 6. That means option C is the करेक्ट ऑप्शन। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। हम बाकी सीरीज़ भी इसके सारे टॉपिक्स 1 by 1 कंप्लीट कर देंगे इस सीरीज़ में। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।